So the next topic is cogging. So cogging is also said to be magnetic locking. इसको हम magnetic locking भी कहते हैं. So basically what happens in cogging? Sometimes if we apply full voltage to the stator of three-phase induction motor, the induction motor refuses to start. Induction motor start नहीं होती है. सो व्हाट इज़ द टेंडेंसी, क्या वहाँ पे होता है जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट नहीं होती है. सो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो समटाइम्स इवन व्हेन फुल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फेल्स टू स्टार्ट. दिस हैपन्स when the number of stator and rotor slots are either equal or have an integral ratio. ठीक है, when the number of stator slot is equal to number of rotor slot, or it is having an integral ratio, or it has an integral ratio, then strong alignment forces are produced. Hence there will be strong alignment torque, and which will be more than the starting torque. जो alignment torque बनती है वो starting torque से काफ़ी ज़्यादा बनती है, जिसके वजह से the motor refuses to start. ठीक है, basically this phenomenon of locking between stator and rotor teeth is called teeth locking या cogging. ठीक है, अब देखो इसको फिर से समझो आप. जब when stator teeth, अगर stator के जो slots हैं, stator के slots, if it is integral multiple of rotor slot, या तो ये rotor slot के बराबर हो जाए, अगर stator का slot रोटर स्लॉट के बराबर हो जाए, या इसके इंटीग्रल मल्टीपल में हो, तो इससे क्या होता है कि अलाइनमेंट फोर्सेस प्रोड्यूस होता है. एंड इन्हीं अलाइनमेंट फोर्सेस के कारण देयर इज अलाइनमेंट टॉर्क, जो अलाइनमेंट टॉर्क आती है, और वो अलाइनमेंट टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क है उससे काफी ज्यादा होती है, एंड द मोटर रिफ्यूजेस टू स्टार्ट. बेसिकली व्हाट हैपेंस, यू कैन सी हियर, जैसे अगर स्टेटर के स्लॉट्स is integral multiple of rotor slots, or equal to rotor slots, अगर ये rotor slots के equal हो जाए तब भी ऐसा होता है. Basically what happens, you can see this is the slots. आप slot बना सकते हैं. ये मान लो हमने slot बनाया, ये stator का slot हो गया. If suppose this is the rotor slot, अगर ये रोटर का स्लॉट है, तो व्हाट हैपेंस, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज मिनिमम व्हेन द स्टेटर एंड रोटर टिथ फेस ईच अदर. जब स्टेटर एंड रोटर टिथ एक दूसरे को फेस करते हैं तो यहां जो हमारी रिलक्टेंस होती है, दिस रिलक्टेंस इज मिनिमम. ठीक है, ये जो रिलक्टेंस है ये रिलक्टेंस मिनिमम होती है, एंड द रिलक्टेंस एंड दिस पाथ ऑफ रोटर, दिस पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस, this is the path of minimum reluctance. Hence the rotor has a tendency to keep itself in this position. You can write here, this is the path of minimum reluctance. Okay, so the rotor has a tendency to keep itself in this position. Okay, so here the alignment forces and hence alignment torque is produced. यहाँ पे alignment forces आती है और एक alignment torque आएगी. So the alignment torque, जो यहाँ पे alignment torque बनेगी, alignment torque, it is greater than starting torque of three-phase induction motor. So the motor refuses to start, और मोटर हमारी रिफ्यूज हो जाती है, मोटर रिफ्यूज करता है स्टार्ट होने से. So this is called cogging और magnetic locking. So how it can be minimized, आप इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? It can be minimized by skewing of rotor. स्क्यू करने से, स्क्यूइंग ऑफ रोटर. अगर आपने रोटर को स्क्यू किया है
तो इससे क्या होगा कि स्टेटर एंड रोटर के जो टिथ हैं इट विल नॉट फेस ईच अदर, इट विल नॉट फेस ईच अदर, ये एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी है ये मिनिमाइज हो जाएगी। आई रिपीट ऑल दिस थिंग्स अगेन, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, यू कैन नोट इट डाउन। समटाइम्स इवन व्हेन फुल वोल्टेज इज अप्लाइड, sometimes even when full voltage is applied to the stator of three-phase induction motor, the motor refuses to start. This what happens when the stator slot is equal to the rotor slot, or it is an integral multiple of rotor slot, then some alignment forces are produced, some alignment forces, and hence alignment torque is produced which is more than the starting torque, and hence the motor refuses to start. This is how you can see when stator and rotor teeth face each other, this is the path of minimum reluctance, this is the path of minimum reluctance, and hence the rotor has a tendency to keep itself in this position. और ये जो minimum reluctance का path है, कि जो path है उसको रोटर छोड़ना नहीं चाहती है, और इसी को हम मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है अलाइनमेंट टॉर्क बनेगी, ये जो आपस में एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं, ये जो अलाइनमेंट टॉर्क बनेगी इट इज मच ग्रेटर देन, मच नहीं कह सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन स्टार्टिंग टॉर्क, सो द मोटर रिफ्यूजेस टू स्टार्ट। एंड हाउ इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्क्यूइंग द रोटर। अगर आप रोटर को स्क्यू करते हैं, स्लाइटली स्क्यू करते हैं बाय वन स्लॉट पिच, जनरली रोटर इज स्क्यूड बाय वन स्लॉट पिच, स्क्यूड बाय, जनरली रोटर इज स्क्यूड बाय वन स्लॉट पिच। एक स्लॉट पिच की हम रोटर में स्क्यूइंग करते हैं, स्क्यूइंग करके हम जो है इसको कॉगिंग को या मैग्नेटिक लॉकिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगेन दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, नॉट इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही ये जनरली आती है, कारण स्क्वायरल केज की जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफी कम होती है कंपैरिजन टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, सो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने रोटर को स्क्यू किया, और स्क्यूइंग करने से ये कॉगिंग की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इज इंडक्शन जनरेटर। अब देखिए इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर। जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, when the speed of induction motor ns when the speed of induction motor nr becomes greater than ns, अगर जो स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर nr से ज्यादा ns से ज्यादा हो जाती है, नाउ द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर दिस इज ns माइनस nr अपॉन ns। व्हेन इफ अगर nr की वैल्यू ns से ज्यादा होगी, नाउ स्लिप विल बी नेगेटिव, और स्लिप नेगेटिव जहां होगी द मोटर विल स्टार्ट टू रन एज इंडक्शन जनरेटर, और ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ओके, सो ये हमारी मोटरिंग रीजन है, दिस इज जनरेटिंग रीजन, ये हमारा जनरेटिंग रीजन है, एंड दिस इज ब्रेकिंग रीजन। अगेन जिस तरह से मोटरिंग रीजन में आपकी मैक्सिमम टॉर्क हो रही थी, उसी तरह से जनरेटिंग रीजन में भी मैक्सिमम टॉर्क होगी, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क होगी, और दिस इज ब्रेकिंग रीजन। तो आप देख सकते हैं जो जनरेटिंग रीजन में स्लिप की वैल्यू होगी वो 0 से -1 के बीच में होगी, और जो स्पीड होगी वो ऑब्वियस है ns से ज्यादा होगी। यू कैन राइट हियर 2ns, स्पीड जो होगी वो इसकी ns से ज्यादा होगी। ठीक है, और ब्रेकिंग में जो स्लिप की वैल्यू होगी वो 2 तक आएगी, 1 से ज्यादा होगी स्लिप की वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर के एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यही हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या है आप नोट करते जाएं। नंबर 1 एडवांटेजेस, नंबर 1 व्हाट हैपेंस, देयर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द मशीन। ठीक है, पहली चीज है कि देयर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द मशीन, there is no need of synchronization। अब जैसे देखो, आपको जो सिंक्रोनस जनरेटर था उसमें आपको क्या करना पड़ता था, सिंक्रोनस जनरेटर में आपको बार बार सिंक्रोनाइज करना पड़ता था, मतलब स्टेटर एंड रोटर के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लॉक होकर के और दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती थी, बट हियर देयर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज देयर इज नो फिक्स्ड स्पीड। यहां पर फिक्स्ड स्पीड भी नहीं है। सिंक्रोनस मोटर में सबसे बड़ी कमी क्या थी,
वो फिक्स्ड स्पीड पे चलती थी, बट हियर नो फिक्स्ड स्पीड, कोई फिक्स्ड स्पीड हमारी नहीं है, नो फिक्स्ड स्पीड. इट कैन रन एट एनी स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड, ये किसी भी स्पीड पे रन कर सकता है अबव सिंक्रोनस स्पीड. सो दीज आर द टू एडवांटेजेस. फर्स्ट इज देयर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मशीन, कोई सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है. एंड सेकेंड, देयर इज नो फिक्स्ड स्पीड, कोई इसकी फिक्स्ड स्पीड भी नहीं है. इट कैन रन एट एनी स्पीड अबव सिंक्रोनस स्पीड. So these are the advantages. Now we talk about disadvantage. The first disadvantage is, पहला जो इसका disadvantage है वो क्या है? You can see there is no source from which it can draw magnetizing current. ठीक है, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग करंट कहां से ड्रॉ करेगा? कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करे. तो यू विल हैव टू कनेक्ट ईदर एन ऑल्टरनेटर इन पैरेलल विद दिस इंडक्शन मोटर, या तो आपको एक ऑल्टरनेटर लगाना पड़ेगा जिस ऑल्टरनेटर से ये मैग्नेटाइजिंग करंट गेन करे, अदरवाइज यू विल हैव टू कनेक्ट इट फ्रॉम एनी थ्री फेज सप्लाई. बात समझ में आई? तो पहली चीज है कि ये अपनी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कहां से गेन करेगा? दिस इज नॉट क्लियर. So there is no source from where it can draw its magnetizing current. You can note it down. There is no source from where it can draw its magnetizing current, or an alternator must be connected in parallel with the supply line. So it cannot be made an independent source. तो आप इसको एक independent source नहीं बना सकते. ठीक है, तो पहला disadvantage you can note it down. Now second thing is इट सप्लाई ओनली एक्टिव पावर. पहला आप पहले नोट कर लो. देर इज नो सोर्स फ्रॉम वेयर इट कैन ड्रॉ मैग्नेटाइजिंग करंट. ये मैग्नेटाइजिंग करंट कहां से ड्रॉ करेगा? ये कोई भी सोर्स नहीं है. सो यू विल हैव टू कनेक्ट एन ऑल्टरनेटर. आपको एक ऑल्टरनेटर कनेक्ट करना पड़ेगा जहां से ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करे. सेकेंड थिंग कि इट ओनली सप्लाईज एक्टिव पावर, ये सिर्फ एक्टिव पावर ही सप्लाई करती है, रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं करती है. सो सेकेंड थिंग इज इट ओनली सप्लाईज एक्टिव पावर, इट डज नॉट सप्लाई रिएक्टिव पावर. ओके, नाउ थर्ड थिंग इज द वोल्टेज ऑफ इंडक्शन जनरेटर इज नॉट फिक्स्ड. द वोल्टेज ऑफ इंडक्शन जनरेटर इज नॉट फिक्स्ड, इसकी वोल्टेज भी फिक्स्ड नहीं होती है. Voltage of induction generator is not fixed. इसकी वोल्टेज फिक्स नहीं होती है. ठीक है, सो but it is fixed by supply line. You can note it down. The voltage of induction generator is not fixed, but it is fixed by supply line from which it is connected in parallel. Similarly, frequency is not fixed. It is also fixed by supply line. तो जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने बताया कि वोल्टेज भी इसकी फिक्स नहीं होती है और फ्रीक्वेंसी भी इसकी फिक्स नहीं होती है. वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों इसकी फिक्स कहां से होती है? जिस सप्लाई लाइन से ये पावर को गेन कर रहा है. जो सप्लाई के साथ आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है वहीं से ये अपनी वोल्टेज भी गेन करता है, उसी वोल्टेज पे ये रन करता है, उसी वोल्टेज पे पावर जनरेट करता है और उसी फ्रीक्वेंसी पे ये पावर जनरेट करता है. मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों जो सप्लाई लाइन की होगी उसी पे ये पावर को जनरेट करेगा. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. पहला हमने देखा कि कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से ये मैग्नेटाइजिंग करंट गेन करे. दूसरा हमने देखा कि ये सिर्फ एक्टिव पावर ही प्रोड्यूस करता है, रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस नहीं करता है. थर्ड, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी इसकी कोई फिक्स नहीं है कि कितने वोल्ट पे पावर जनरेशन करेगा. जो सप्लाई की वोल्टेज है, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, उसी से इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है. सो दीज आर द सर्टेन डिसएडवांटेजेस. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंडक्शन जनरेटर? द मेन यूज ऑफ इंडक्शन जनरेटर, जो ये इंडक्शन जनरेटर है इसका जो मेन यूज है वो है इट इज यूज्ड एज पावर बूस्टर. पावर को बूस्ट करने के काम में आता है, इसके अलावा इसका कोई भी खास काम नहीं है. जो एप्लीकेशन है, यू कैन राइट इट डाउन, इट इज यूज्ड एज पावर बूस्टर. पावर बूस्टर के तौर पे हम इसको यूज में लेते हैं. एक्टिव पावर को ये बूस्ट करता है, नथिंग एल्स. इसके अलावा कोई भी इसका काम नहीं होता है. सो दिस इज द इंडक्शन जनरेटर, which is the last topic of this unit.
सो अब आप जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है उसको आप फेयरली नोट्स बना लें, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉगिंग, क्रॉलिंग, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में। हाउ टू मिनिमाइज कॉगिंग, हाउ टू मिनिमाइज क्रॉलिंग, और इंटरव्यू का दिस इज द फेमस क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये फेमस क्वेश्चन है, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। ओके, सो थैंक यू। आप इसको देखें, जो भी डाउट हो यू कैन क्रिएट द डाउट्स। थैंक यू।